Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. By the grace of Allah, how are you? By the grace of Allah, I hope all of you well and safe and sound. I am Ms. Rukhsana, physics subject teachers. Today I will discuss the chapter Unit 3, Geometrical Optics. The page number is 57. This chapter is about different aspects of lights and its applications. As in our daily observation, we can see the things in day or in sunlight or in light, but in night or darkness we cannot see anything. It is all due to the lights. Ibn al-Haytham was the first whose great contribution for these topics. He was the first. He gave the great theory about the light. He gave the theory that he discovered the nature of light. He discovered the nature of light and told that it is kind of energy. He gave he obtained an image of sun eclipse. He gave 2 laws of reflection and carried out the research on the formation of images by spherical mirror. In this book, the chapter on human eyes is still a remarkable collection of information on these topics. Another important principle he discovered is that a ray of light passing through a medium takes a path which takes the least time in travels. So we discuss in this chapter the characteristics and the applications of light in our daily life. In daily life, he says of the first is what are the characteristics of lights? What are the light travels in a straight line. When light strikes on a shining surface, it bounces back, and when light passes through a lighter medium to another medium, it changes its directions. And when white light passes through a prism, it's dispersed. It splits in different colors. Different colors. The rainbow, it's our in observation. It has a 7 different colors we can see on sky. The first things we discuss about the light is the reflection of light. What is reflection of light? Reflection of light is, I have told you that when light strikes the surface, it bounces back. This is called as reflection of light. The light rays which strike the surface of shining surface is known as the rays of light, incident ray. And when this light is bounced back in the same way, is known as the reflection of reflected light. The angle between these the incident ray and normal is known as angle of incident. The angle between the reflected ray and the normal is known as angle of reflection. देखिए वो जो है हम दिन में जो है रोशनी में ही चीज़ों को देख सकते हैं, और जब हम अंधेरा होता है तो हमारे एक्सपीरियंस में होता है कि वो जो है हम उन चीज़ों को प्रॉपर नहीं देख सकते. हमें चीज़ों को देखने के लिए जो है रोशनी की ज़रूरत होती है. इब्न अल-हैथम जो ग्रेट साइंटिस्ट था, उसने यही बताया कि एक तो रोशनी की रेज जो है वो स्ट्रेट जाती हैं और हमारी आंख में जब एंटर होती हैं, जब लाइट की रेज जो है पहले किसी चीज़ से ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, उसके बाद वो हमारी आंखों में आती है, फिर हमें वो चीज़ जो है दोबारा प्रॉपर से सही नज़र आती है. तो ये जो है पहला जो लॉ जो है ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और इससे रिलेटेड जो है वो लॉज हैं जो स्नेल्स ने दिए थे, और उसने 2 लॉज हमें दिए कि वो जो है इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और जो है और नॉर्मल ऑल आर्स लाइज इन अ सेम वे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ incidents are equal to each other. This is known as the reflection of laws of reflection of light. यानी इसमें जो है क्या इसका जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो पहला कानून क्या है कि जब लाइट की रेज जो है किसी सरफेस से शाइनिंग और स्पेशली शाइनिंग सरफेस से टकराती हैं तो उसी तरह वापस लौट जाती हैं और इनके दरमियान जो है हम एक लाइन सपोज करते हैं जिसे हम नॉर्मल कहते हैं. नॉर्मल इंसिडेंट रे के दरमियान का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है और रिफ्लेक्शन और इसके दरमियान जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है. जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वली होता है. तो ये हमारे लिए किस तरह से, और इसी को देखते हुए, इन लॉज को देखते हुए हम आगे पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारे लिए किस तरह हमारी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंस होते हैं. इन्हीं को देखते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें जो है बनाई हैं जिसकी वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. अब इमेजेस में देखिए, मिरर में क्या होता है, जब इमेज अगर वो जो है लाइट जो है उस पर पड़ती है, पोल उस पर पड़ती है, when light pass this is the mirror and center of the mirror is known as pole and this straight line is called as principal axis. When light rays passes any object to the mirror, if it is parallel to the principal axis, it passes through a focus. The focus is pole and center of curvature. सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के दरमियान ये फोकस होता है जहां से रेज गुजरती है. अब जो है जब ये रेज इससे गुजरेगी तो क्या होगा, पैरेलल होगी. फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर इमेज बनता है, जिस रेज से जब किसी जो ऑब्जेक्ट जो हम अक्स देखते हैं, देखिए जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं हमें अपना इमेज नज़र आ रहा होता है, हमें अपनी शक्ल नज़र आ रही होती है. और मिरर की खुसूसियत ये होती है कि इसकी वन साइड जो होती है वो पॉलिश होती है और अदर साइड जो होती है वो शाइनिंग होती है. तो मिरर में से जब ये लाइट जो गुजर रही होती है तो क्या होता है, यहाँ से पैरेलल गुजरती है तो फोकस से गुजरती है. फोकस वो पॉइंट है जहाँ से जब रे गुजरती है तो उस जगह पर इमेज बनता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो उससे बहुत सारी रेज जो होती हैं मिरर पर पड़ रही होती हैं. लेकिन हम इनमें से चंद रेज जो होती हैं उनको डिस्कस करते हैं जिनके जरिए जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं. एक तो पहली बात ये कि जब लाइट पैरेलल गुजर रही होती है तो फोकस से गुजरती है. दूसरी रेज जो होती है जब है अगर सेंटर ऑफ उससे गुजरती है, फोकस से गुजरती है, तो वो क्या होती है, वो भी इसी तरह पैरेलल वापस होती है. अगर देखें यहाँ पे अगर रेज ऑब्जेक्ट से गुजर के उस पे भी जा रही थी, पैरेलल जा रही होती है तो फोकस से गुजरती है, और अगर फोकस से गुजरती है तो वो भी क्या होती है, पैरेलल जो है थी वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होती है. क्या कहा था आपको, जब लाइट किसी शाइनिंग सरफेस पे ऑब्जेक्ट से पड़ती है तो क्या होता है, वापस लौटती है, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. तो ये इन्हीं के बेस पर जो है हम वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ऑब्जेक्ट जो है वो चीजें बनाते हैं. अब इसको हम पहला वाला क्वेश्चन जो होगा वो हम इससे रिलेटेड जो करेंगे वो क्या होगा, डिफाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो क्या है पहला, लाइट इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक अ स्मूथ पॉलिश सरफेस एंड देन रिटर्न्स और बाउंस बैक. जो मैंने भी समझाया था कि लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है, स्पेशली जो स्मूथ हो, पॉलिश्ड हो, तो वो क्या होता है, तो पॉलिश जो कि बैक साइड होती है इसकी मिरर की, तो उसमें जो है शाइनिंग सरफेस होगी तो क्या होगी, बाउंस बैक होगी. द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक द सरफेस इज रिफ्लेक्टेड टू एज एन द इंसिडेंट रे, बट द रे ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक इज रिफ्लेक्टेड टू एज अ रिफ्लेक्टेड रे. द टर्म नॉर्मल रेफर्स टू द लाइन दैट इज क्रिएटेड व्हेन अ परपेंडिकुलर इज मेड बिटवीन टू रेज ऑन रिफ्लेक्टेड सरफेस. ये देखें यहाँ ये डायग्राम है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये परपेंडिकुलर लाइन है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं.
अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to the angle of reflection is known as the first law of reflection. The first point is incident ray, reflected ray and normal all are alike on the same surface, and second law is the angle of incident is equal to the angle of reflection. Here is written is the incident ray, reflected ray and the normal to the reflected surface all lie in the same plane is known as second Snell's law. ये laws of reflection और ये laws of reflection और Snell's law कहलाता है ये. इसके बाद हम इसके types पढ़ेंगे. There are different types of mirror. There are two types of mirror, plane mirror and spherical mirror. What is the plane mirror? The incident ray and the reflected ray all lie in the plane and angle of incident and angle of reflection are equal. The image of real image formed in plane mirror is found to be the same size on the object erect virtual. It is the inverted laterally and located at the same distance behind the mirror as object in the फ्रंट. इसकी एग्जाम्पल ये कि हम मिरर के सामने अगर देख रहे होते हैं तो क्या होता है, हमें जो इमेज नजर आ रहा होता है. वर्चुअल का क्या मतलब? वर्चुअल वो इमेज होता है जिसे हम स्क्रीन पर नहीं लिख सकते, स्ट्रेट नजर आ रहा होता है. और दूसरी बात ये कि अगर आप जो है जो आपकी साइड उसमें उल्टा भी नजर आ रहा होता है, इन्वर्टेड नजर आ रहा होता है, क्योंकि अगर आप है ना ये जो है वर्ड्स अगर आपने उसमें मिरर में देखेंगे तो आपको उल्टा नजर आएगा, तो आपको महसूस होगा कि ये जो है हमें जो नजर आ रही होती है मिरर में चीज वो कैसी होती है, उलट हो रही होती है. तो अब उसमें इरेक्ट होती है, सीधी नजर आ रही होती है, सेम साइज की नजर आ रही होती है, सेम डिस्टेंस पे. जैसे जैसे अगर हम पीछे होंगे तो आप मिरर पे देखेंगे कि वो चीज जो है वो पीछे जो मिरर में भी आपको वो डिस्टेंस फील होगा. इसके बाद है दूसरा स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर इज मे बी कंसिडर एज अ सेक्शन ऑफ हॉलो स्फेयर. अगर कोई एक शीशे का वो लेंगे गिलास, शीशे का वो होगा और वो राउंड में होगा तो उसका जो सेक्शन पार्ट होगा, ये स्फेरिकल मिरर क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास का जो है एक पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, हॉलो स्फेयर. जो अंदर से खाली होता है उसके पार्ट को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर आर आल्सो टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर क्या है? If the inner side of the surface of mirror is polished to reflect light is called concave mirror. It has an ability to converge a parallel beam of light. Therefore, it is called converging mirror. कन्वर्जिंग का मिरर मतलब है किसी एक पॉइंट पे जब इससे ऑब्जेक्ट से गुजरती हुई लाइट इस पे पड़ती है तो क्या होगा, पहले एक पॉइंट पे जमा होगी और इसके बाद क्या होगा, फिर ये फैलेंगी. जब ये जो है कॉनकेव मिरर, देखिए एक ये साइड ये है इस तरीके की, ये कॉनकेव है, और ये वाली साइड जो बाहर की तरफ निकली है इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं. तो कॉनकेव मिरर क्या करती है, लाइट रेज को एक पॉइंट पे जमा करती है फिर स्प्रेड होती है, ठीक है. और कॉन्वेक्स मिरर क्या है? If the outside of the surface of mirror is polished to reflect light, it is called convex mirror. It has an ability to divert the parallel rays of light. It is known as diverging mirror. अगर ये वाली साइड इस तरह उभरी हुई होती है तो यहाँ जब लाइट इस पर पड़ती है तो क्या होता है, ये चारों तरफ फैल जाती है. कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि लाइट जो है चारों तरफ आप देख रहे हैं इस तरीके से हो जाती है, फैल जाती है. अब इसके बाद जो है अब इन्हीं क्वालिटीज़ को देख के हम मुख्तलिफ जो है हमारी डेली लाइफ में जो है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को हम इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं. मसलन नंबर 1 इज़ कॉन्वेक्स मिरर आर यूज फॉर ट्रैफिक सेफ्टी पर्पस टू सी द ब्लाइंड टर्न्स ऑन द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड कॉलिजन ऑफ व्हीकल्स. यानी आपने अक्सर गाड़ी में देखा होगा मिरर्स लगे हुए होते हैं जिसके जरिए वो पीछे की तरफ देख रहे होते हैं ताकि उनको जो है मतलब किसी एक्सीडेंट से या कोई अगर गाड़ी आ रही तो उसको सेफ्टी के लिए होता है, वो इसके जरिए मालूम कर सकते हैं गाड़ी किस वो रुख पर आ रही है. नंबर 2 है कॉन्वेक्स मिरर आर कर्व आउटवर्ड्स
that reflect light outwards allowing drivers much larger area ऑफ द फील्ड बिहाइंड देम। अब कॉन्वेक्स में हमें क्या बताया था कि लाइट जो है टकराने के बाद फैलती है, तो इससे क्या फायदा होता है कि जो मिरर यूज कर रहे होते हैं वो ज्यादा बड़े एरिया में उसको देख सकते हैं। तीसरा ये है विंग मिरर, और जो साइड मिरर होता है विंग मिरर और ड्राइवर मिरर आर फिटेड ऑन साइड्स ऑफ द व्हीकल सो द ड्राइवर कैन सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम। अब ड्राइवर को एक तरफ तो ये देखना होता है कि इसके पीछे कौन सी गाड़ी आ रही होती है, उसके जरिए वो देखता है। दूसरा ये कि इसके पास एक ऐसा मिरर होता है जिसको बड़े विजन पे उसको देख सकता है। दूसरा जो है वो है कॉन्केव मिरर। अब हम उसके यूजेस पढ़ेंगे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर? कॉन्केव मिरर इज यूज इन टॉर्चेस एंड कार हेडलाइट्स। अब देखें, जब हमें किसी चीज को फोकस्ड होके देखना होता है, कुछ कम एरिया में ज्यादा देखना होता है, तो उसके लिए हम कॉन्केव मिरर, ज्यादा बड़े एरिया के लिए हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं, कम उसके लिए जो है हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। देखिए टॉर्चेस वगैरह जो है, ये हेडलाइट्स हैं जो छोटे एरिया को फोकस कर रहे होते हैं, उसको के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा इसका है द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू व्यूज स्टार्स एंड प्लैनेट्स। दूर तक की चीजों को देखने के लिए जो हम यूज कर रहे होते हैं वो टेलीस्कोप होता है। इसके बाद अ डेंटिस्ट यूजेस कॉन्केव मिरर टू सी द टूथ क्लियरली एंड डायग्नोस एनी इन्फेक्शन और जर्म्स। तो इसी को देखते हुए जो है वो कॉन्केव मिरर से जो यूज हो रहा होता है डेंटिस्ट के पास, जो अक्सर जिन लोगों का इत्तेफाक हो वो जानते हैं कि जिस वक्त दांत पे होता है तो एक मिरर के जरिए उसको चेक कर रहे होते हैं। इसके बाद है नंबर शेविंग मिरर आर ऑफन कॉन्केव मिरर। जो शेविंग मिरर होते हैं कॉन्केव मिरर होता है। इसके बाद अ कॉन्केव मिरर इज आल्सो यूज इन अ माइक्रोस्कोप टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट्स। तो नाउ वी हैव डिस्कस मैनी थिंग्स अबाउट द, अब देखें मैंने अभी आपको लाइट के बारे में बताया कि लाइट जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लाइट रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट बाउंस बैक वन लाइट रेज बाउंस बैक व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ शाइनिंग सरफेस। वाटर, ग्लास is plastic is the examples of water, air and glass is the example of transparent medium of light। और उसके बाद जिसे दूसरा जो सेकेंडली जो वी हैव डिस्कस इट कि व्हेन लाइट रेज पास थ्रू लाइट मीडियम और फ्रॉम द एयर टू अनदर मीडियम और डेंस मीडियम इस चेंज इस डायरेक्शन। अभी नेक्स्ट उस टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा थर्ड इज जो है वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट चैप्टर कि व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इन डिफरेंट 7 कलर्स। और इस 7 कलर्स की जो एक एग्जांपल जो है मैंने आपको बताया कि जो है खूबसूरत एग्जांपल इसकी रेनबो है। जब सूरज की रोशनी जो है वाटर ड्रॉप्स जो है एक्ट करते हैं एज अ प्रिज्म, उसमें से गुजरती तो हमें 7 कलर्स नजर आते हैं। दूसरा ये 7 कलर जो है हम अपने घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमारे घरों में अक्सर एलईडी है तो अगर वो वाइट लाइट जो है आप देखेंगे उसको ऑफ करके देखें तो उसमें बैंड ऑफ कलर्स नजर आएगा। तो ये जो है चीजें आप लोगों के एक्सपीरियंस में हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एक एग्जांपल देखें, आपके घर में जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या बताया था कि उसकी एक साइड जो होती है वो जो होती है पॉलिश्ड होती है, दूसरी साइड शाइनिंग होती है। जब लाइट की रेज जो होती है उस शाइनिंग सरफेस से टकराती है तो क्या होती है, बाउंस बैक होती है और फिर हमें चीजें नजर आती हैं। घर में हमारे बहुत बड़े एग्जाम्पल है, अगर हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो हमें अपनी जो है उसमें शक्ल या इमेज उस पर हमें नजर आती है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एग्जाम्पल है कि किस तरीके से। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मैंने आपको 2 रूल्स बताए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 रूल्स हैं कि उसमें जो है पहला रूल्स यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल जो है ये तमाम जो चीजें हैं वो एक ही सरफेस पे हमें सेम सरफेस पे नजर आती हैं। और इसकी दूसरी जो लॉ है इसका वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा जो लॉ है वो ये है कि इंसिडेंट रे और व्हेन इंसिडेंट रे और अ लाइन व्हिच इज द परपेंडिकुलर
is known as normal. The normal and incident between the incident ray and normal, the angle of इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसे हम जो है इंसिडेंट एंगल कहते हैं. और नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड. बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होता है, सेम होता है. और आप लोगों को ये मैं प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेट भी करवा चुकी हूँ किस तरीके से कि अगर है ना इसकी रेज जो है मिरर पर पड़ती हैं तो किस तरह से ये एंगल दोनों जो है वो इक्वल होते हैं. इन्हीं जो है, और इसके बाद मैंने आपको टाइप्स बताई हैं. टाइप्स कौन सी बताई है? प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर. प्लेन मिरर भी आपको बता दिया. प्लेन मिरर जो हमारी रोजमर्रा में आप देखते हैं जो होता है वो प्लेन मिरर होता है. Now second types of mirror क्या है? Spherical mirror. Spherical mirror are two types, concave mirror and convex mirror. Concave mirror की क्या है? One side जो है क्या होता है, इसके the inner side of the surface of the mirror is, जो इसके जो है एक साइड जो इधर वाले इस तरह देखिए, इस तरह अंदर की तरफ थोड़ा सा टर्न हुआ होता है और इसको हम कॉनकेव कहते हैं क्योंकि कॉनकेव जो है थोड़ा सा टर्न उसकी तरीके से होता है, गार की तरह से, जिस तरह वो कॉनकेव से इस तरह लेते हैं. देखिए ये थोड़ा सा अंदर की तरफ को बेंड हुआ होता है. और इसकी खुसूसियत ये है कि जब लाइट की रेज जो होती हैं ऑब्जेक्ट से गुजर के इससे टकराती हैं तो वापस क्या होता है, पहले एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, इसके बाद फैलती हैं, स्प्लिट होती हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, ये यानी ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है कि एक पॉइंट पे जमा होती हैं और फिर उसके बाद ये फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं ये. तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, सॉरी कॉनकेव मिरर कहलाता है जिसमें फैलती है. कॉन्वेक्स मिरर जो है उसकी क्या होता है, आउटसाइड जो सतह जो होती है उभरी हुई होती है, ये देख लीजिए. और इसकी सरफेस जो है इसको जो है इसके जरिए एबिलिटी है कि ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है पैरेलल रेज को. इसके साथ क्या होती है, रेज जो होती है वो सारी की सारी क्या होती हैं, फैलती हैं एक दूसरे से और फिर हमें उसके बाद चीज़ें प्रॉपर नज़र आती हैं. अब इनकी इन्हीं खुसूसियात को लेते हुए जो है हमने कॉन्वेक्स और कॉन्वेक जो है चीज़ें बहुत सारी इनकी एप्लीकेशंस हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोग देख सकते हैं. कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या होता है, मिरर आर यूज फॉर, जो हम किस में यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर आर यूज फॉर ट्रैफिक सेफ्टी पर्पस, टू सी द ब्लाइंड टर्न्स ऑन द रोड, टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड कोलिजन ऑफ व्हीकल्स. कॉन्वेक्स मिरर्स आर कर्व आउटवर्ड्स दैट रिफ्लेक्ट लाइट आउटवर्ड्स अलाउइंग ड्राइवर. देखिए क्या ड्राइवर जो है मिरर आप देख रहे होते हैं गाड़ी में अक्सर यूज़ कर रहे थे, एक उनके अंदर की तरफ लग रहा होता है और एक साइड मिरर्स भी लगे हुए होते हैं. ये साइड मिरर जो है विंग मिरर्स कहलाते हैं, जिसके ज़रिए ये जो है पीछे एक तो ये मिरर्स के ज़रिए देख सकते हैं कि कोई एकदम एंड ना आ रहा हो या कोई ब्लाइंड जहाँ रोड का, जिसके ज़रिए जो है एकदम अगर टर्न होने से इनके एक्सीडेंट्स वगैरह से ख़तरों से बचा जाए. और ये साइड मिरर. दूसरा ये है कॉनकेव मिरर के भी बहुत सारे यूजेस हैं जो हम इस तरीके से स्टार, प्लैनेट्स और ये तमाम चीज़ें, शेविंग मिरर और ये सब चीज़ें देखिए मैंने अभी आपको बताई, इन सब को हम देख सकते हैं. Now our next topic is refraction of light. What is the refraction of light? The bending effect of light as it passes from one transparent medium to another is refraction of light. Yes, the bending effect of light as it passes from a transparent medium to another medium is refraction of light. It is in our daily observation कि we have when we see any things in water we don't see the things in straight. अब अगर हम पानी में अक्सर अगर आप जाके अगर घर में आप एक ऑब्जर्वेशन कर भी सकते हैं प्रैक्टिकली कि अगर कोई पेंसिल या स्पून या कुछ भी पानी में डालेंगे तो वो हमें सीधा नज़र नहीं आएगा, उसमें क्या होगा, वो हमें बैंड नज़र आता है. क्यों? इसी वजह से कि जब लाइट रेज जो होती हैं हवा से, पानी से, जो पानी जो क्या है एक डेंस मीडियम है तो वो जो है हमें तिरछा नज़र आता है. तो ये देखें यहाँ पे ये कि ये जो है
ये जो इस तरीके से इसको प्रैक्टिकल देखेंगे, ये ग्लास स्लैब है, जो रेस इसके ऊपर पड़ रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और इसके बाद जब इस मीडियम से जब दोबारा से वापस जाएगी तो अपनी रास्ते से जाती है, वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ ये देखें, जब इससे इधर आएगी ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इसके बाद दोबारा से ये इमर्जेंट रे कहलाती है। अब जो है इसके हम अगर यहाँ से परपेंडिकुलर अगर हम लाइन खींचते हैं तो इसमें भी क्या होगा कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। ये एंगल ऑफ जो है, देखिए हमें पूरा स्ट्रेट गुजरनी चाहिए रेज, लेकिन जब हम रेज लाइन बनाएंगे तो आप देखेंगे और या प्रैक्टिकल में भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो है इस तरीके से क्या होगा, बिल्कुल सीधी नहीं जा रही, बल्कि क्या होगी, रे का डायरेक्शन जो होगा टूवर्ड्स दी नॉर्मल होगा। कि जो है जब रेज जो होती है लाइटर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल के करीब, जो ये परपेंडिकुलर लाइन जिसे हम नॉर्मल कह रहे हैं इसके करीब होगा। फिर यहाँ से यही लाइन गुजर के ये जो है इमर्जेंट लाइन जिसे हम बाहर जाती है इसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं। और इसी तरह अब ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगा, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। जब डेंस मीडियम से लाइट जो है लाइट मीडियम से डेंस मीडियम से बाहर लाइटर मीडियम में आती तो क्या होता है कि वो उसका अब वो दूर होने लगती है। यहाँ क्या है, नॉर्मल के करीब है, और जब डेंस मीडियम से लाइटर मीडियम में जाती है तो ये रे जो है वो क्या होगी, नॉर्मल से आप देख रहे हैं डिस्टेंस पर जा रही होती है। तो अब इसमें भी ये है कि जो है अब जो है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, जो स्नेल्स लॉ का पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे और जो है नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे अलाइज ऑन सेम प्लेन, ये देखें होते। लेकिन दूसरा क्या है कि द रिफ्रैक्टिव जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज द रेशो। और ये रेशो क्या कहलाता है, देखिए वहां हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि वो इक्वली है, यहाँ इक्वली नहीं होता, बल्कि हम यहाँ क्या लेंगे, रेशो लेंगे। और रेशो जो होता है वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द साइन थीटा ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction when the ray of light enters from one medium to another। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं रेशो पढ़ेंगे, और वहां हमने क्या पढ़ा था कि वो जो है इक्वल होते हैं। तो यहाँ ज़ाहिर है एंगल जो है वो इक्वल नहीं हो सकते, और इसको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको हम एन से शो करते हैं। ये देखिए यहाँ इसका ये फॉर्मूला है। अब इसके दो लॉस हो गए, क्या हो गया, ये रेशो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन पहला लॉ जो है वो इक्वली कि वो सेम है कि वो साम आ जाते हैं। अब देखिए हर उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ एक टेबल है, आप देख सकते हैं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है उसकी, क्योंकि उनकी हर एक की स्पीड डिफरेंट होती है। इसीलिए क्या होता है कि जब वो रेशो जो होता है किससे हम वाटर से ही कर रहे होते हैं कंपेयर, तो यहाँ जो है वो सब जो है वो जो क्योंकि एक हमारे पास स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमारे पास जो लाइट जो है क्या है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। हमारे पास जो है स्टैंडर्ड जो हम बना लेते हैं वो एयर को बनाते हैं, जिसकी हमें लाइट रेज मालूम होती हैं, उसके जरिए ही फिर हम दूसरी जो चीजें हैं उनका जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ लाइट रेज जो होती है वो 3 जो लाइट की रेज जो है 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, और यहाँ पे इनके इसी वजह से इनके डिफरेंट जो है स्पीड डिफरेंट होती है, और इनके इसी लिहाज से उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होते हैं। नाउ विल डिस्कस लेटर डिटेल। So today we discuss unit 13 geometrical optics. The page number is 57. I hope 2 laws which we explain in it, reflection of light and refraction of light, you may understood better. अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो you may ask in class। और जो काम आपको दिया गया है क्वेश्चंस के हवाले से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जो कुछ आपको कराया है आप जो है उसे अपनी नोटबुक में प्रॉपर्ली उतार लीजिए और चेक करा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।